कहना मेरे पे सिर्फ फर्जन को मान लेना, ये मुझे नहीं परवाह पड़ती कि शराब पीते थे कि नहीं पीते, वो तेनू परवाह ही नहीं इसका। तो मान किसकी लेना। अब इनके जो दूसरे हैं, अब जिस तरह ये एक मुरब्बी उस्मान नामी है, ये आके साबित करने की कोशिश कर रहा था, नहीं नहीं वो तो इल्ज़ामी जवाब दे रहे थे मिर्जा साहब, वो तो ईसाइयों को बात कर रहे थे कि तुम लोग की किताबों में लिखा हुआ है, हम तो उनको बड़ा रास्तबाज और बड़ा क्या कहते हैं इज्जत वाला मानते हैं। वो आके लोगों को इस ट्रक की बत्ती पीछे लगा रहा होता है कि नहीं जी ऐसा है ही नहीं है। नहीं यार, बड़ी ना अजीब सी महक अल्लाह ने देखो कैसी बदबख्ती डाली है एक कौम के ऊपर। किस कदर बदबख्त लोग हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि उन्होंने यूज कह रहे हैं कि यू स्पीक फ्रॉम व्हाट्सएप। मैं करता हूँ साहिल पे कैमरा नहीं, वो मेरा ना वो समझ लो मैं ही आ जाना नाल ही इस वक्त मैं और जिन्हों मरजाई ਨੂੰ मैं विखा रहा ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। मज़ैया ने फटोफट कर दे पूरे खोला इन्होंने। आ जाओ लंगियो। इवन आदम भाई वो नहीं है टूटिंग में अपना दावत। हाँ जी। उधर ना मैं बड़े शौक निहारी खाता हूँ, शौक से, बड़ी बहुत ही पसंद निहारी हूँ। अच्छा। तो एक दिन मैं गया था, इनका जलसा था, जलसा सालाना, उस पे इकट्ठे होते सारे उस्ताद जी लट मैं कहता हूँ तबाही मची हो टूटिंग के ऊपर। मैनू वड्डा कर दियो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा कर दे रहा मरज़ई ही मरज़ई। ओए हो अच्छा उस्ताद मैं अंदर घुसा हूँ, वो लजराए बैठी हूँ उस्ताद, उसके बाद मुरब्बी बैठे हूँ, वो टोपियां वाले नहीं बड़े बड़े। अच्छा। विच जाके ना छोटा जा टेबल उन्हें मैं कहा भाई 1% दी जगह मैंने लभ दे, मेरा था बड़ा अच्छा हिसाब दोस्त के उसे जोड़ दी। मैं जाके ना इशारे नाल निहारी मंगावा, बोला भी ना मैं क्या एक बगैरत ने भी पछाड़ लिया ना, इन्होंने कहना सरतान सच उन्हें कहना सी शटर। हेलो जी। ओ जी ए देखो जी गुस्ताख कौम। साहिल भाई ए गुस्ताख कौम जेड़ी है ना, वो साहिल भाई ऐसे गुस्ताख ने ना, यकीन करो ऐसे गुस्ताख ने कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਹਵਾਲੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹਯਾਤ ਤੇ ਵਫਾਤ ਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਦ ਭੱਟ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਦ ਭੱਟ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਹਫਤਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਓ ਯਾਦੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਹਯਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ। ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਯਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਹਯਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਮ ਚੁਕਾਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਫਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਅਜੇ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਹਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਛੇੜਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਤੂਲੀਆ, ਮੁਫਤੀ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਨਾ ਮੁਫਰਦਾਤ ਖੋਲ ਛੜੀ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸका मतलब ਦਰਜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਖੋਲ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਰਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਖੁਲਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਬੁਲੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਦਰਜਾ ਲੈਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਰਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਲੈਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਕੀ मतलब रफा यदैन दर्जा जुदा है। अच्छा ये पता है कि इब्ने आजम भाई ये वाली जो थी ना रफा यदैन ਦਾ वही देखिए रफा हाथ ऊपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਨਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इस पोस्टर पे मेरा सवाल है, मैं तो आप नहीं पढ़े। मैं पढ़ लो जी मुफक्करे आला आ गए जी, मुफक्करे आला। साकिब भाई है ना, उन्होंने नारा मारना हां नहीं वो वैस का हाथ वाली कैसे में लगता गलती ना। अच्छा वो नहीं है वो वैस क्या, वो वैस कितने थल्ले वैस कितने हैं यार तेरे 2 मिनट वास्ते वो पता करना। वो एक मरबी थल्ले आया था। अच्छा जी, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी। कादियानियों मरज़इयों का मुतफ़िक़ा कीता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह ये काम करते थे। वो शराब पिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मकरो फ़रेब के सिवा कुछ नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से कई करोड़ लोग मुशरिक हो गए। दोबारा इस वजह से नहीं आ सकते कि उनके पहले फितने ने दुनिया तबाह कर दी। कादियानी ये भी कहते हैं कि अगर कोई मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी के बारे में सख्त बात करेगा तो हमारा असूल है कि तमाम अंबिया को गालियाँ देंगे। ये है जी पोस्टर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट पीछे चुप कर दे। ये वाले भाई के नीचे बैठे हैं ना, ये कोई भाई बैठा है, उस जाहिल मुरब्बी ने आखिरी अपनी टर्न जो ली थी ना तरले मिनते करके कि मैं आखिरी 6 मिनट मेरे बनते हैं, उसमें उसने एक गुस्ताखी के पहलू में एक बात बयान की थी कि ये मुसलमान तो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाकामयाब गए थे, कामयाब नहीं गए थे। ये गुस्ताखी नहीं, ज़रा मुझे ऑडियो चाहिए प्लीज़, जल्दी से वो ऑडियो ज़रा भिजवाएं। रोल गई खुदाइया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल के आखिरी दिन भी मंजी ठोकते हुए और साल के स्टार्ट में भी मंजी ठोकते हुए सीकर हाजिर है। हाँ यार मैं पूरी पार्टी हैवी कर ली सी तो मैं क्या चलो 2 दिन का 1 दिन का गैप देख फिर रहिए। नवा साल मनाना चाहिए साकी, खुश आमदीद कहना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुसी अपना कैरी ऑन करो तो साहिल भाई साकी यार ये दो जुमले तो तू रट ले ने, आवाज तेरी माशाल्लाह मोहम्मद रफी अली इनु पूरी बना हा नज़म एक बारी ते नज़म बना देने पूरी नज़म बनी पई है, सिर्फ ओनू अदा ही करना है। हाँ नज़म मलक कैसर ने बनाई है पूरी। शाम 85 खानदान तो कर लगे था तुसी एक बारी ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। भेजो भेजो। कोई हाँ 1 मिनट। अच्छा भाई वो ऑडियो लाजमी कोई भाई सिर्फ निकाल ले, वो आखिरी उसकी बारी में। और दूसरा है मैं क्या कह लगा था साहिल भाई, एक तो ये जो आपने पढ़ के सुनाया, दूसरा मैं लैपटॉप के पास नहीं हूँ, मसीह आसमान पे चढ़ भी गया तो रोता रोता चढ़ा होगा वो हवाला और इतना कामयाब
आवाज क्लियर नहीं, कौन सा? अगर आसमान पे चढ़ भी गया है तो रोता रोता ही चढ़ा होगा। अच्छा मैं देखता हूँ। ये लाजमी दे। No, I'll do it. So I'm counting now how many bottles it is. Like so, pack of 4, so 3 1 plus is 12. It's 416. Sorry. 1, 2, 3. Yeah. ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? दावा क्या है? दावा भी तो दो। आप दावा भी तो चेक करें। हजरात यानी कि ये इस कदर बंदा परेशान हो जाता है कि जिस कदर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इन्हां दी गुस्ताखियां शुरू ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शुरू हुई सन, फिर इन्हां ने किसी नू नहीं छड़िया ते आखिरी चीज फिर जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते गुस्ताखियां करदे ने। पूरी इन्हां इस जमात दा जेड़ा है ना वतीरा बन गया। वालेकुम सलाम वैद भाई। वालेकुम सलाम। जरा 2 मिनट भाई तू करो मैसेज में। जी जी तुसी करो अपना जी। बस उन्हीं देर तक सी वो आ गए साकिब भाई। साकिब भाई मेरा ਹਾਂਜੀ। क्वेश्चन पहुंचे सी? सवाल मेरा सुनिया? ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ। ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਬੀਤੀ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਗੰਦ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਣਾ, ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, बस ਗੱਲ खत्म। यानी कि बदल से दोस्त दोस्त सीखकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि वो छा गयो जी। अदर भाई पढ़ लिया ने रिकॉर्डिंग। सिकर भाई थोड़े मेरे साइड ते ने दे वो आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਤਬਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ हाजिर भाई ये जरा दोबारा सुनाना है ऑडियो। ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਖੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। हैदर भाई मेरे से पीछे गए ने साकी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੱਬੀ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੀ ਜੀ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਲਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਲਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹੋ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋੜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ करते थे। कल ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ माजरत रिपीट करें बात दोबारा। माजरत मैं अब जरा बोलें, रिपीट करें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कल से ये बात, इस बात के ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो तोहमत लगाई है, ये जो इल्जाम लगाया कि वो शराब पिया करते थे, कल से मुसलमान इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये इल्जाम है। नबी, अल्लाह का कोई भी नबी इस तरह की कोई भी हरकत कर नहीं सकता। लेकिन इसके बरक्स कादियानी किस चीज के ऊपर जोर लगा रहे हैं? वो इस चीज के ऊपर जोर लगा रहे हैं कि नहीं, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने ये जो बात लिखी थी ये सही बात है, वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। और इसके लिए वो कभी बाइबल से हवाले कोट करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी आलिम दीन की बात पेश करते हैं। तो ये बिग डिफरेंस आपको नहीं। अल्लाह के फजल से दोस्तों सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि दूसरी दफा वो आता है जो पहली दफा फेल हो जाए। हजरत ईसा ने ए मेरी ना वारी आखिरी मैं ले बैठा सी ते मतलब मैं जारी बात है, वरना इसने रोते मातम और मचाना था। नहीं तो यकीन करे उस टाइम भी मिर्जा साहब को 6ठी दफा इसने ट्रक के नीचे दे दिया था इस जाहिल मुरब्बी ने। ले इसके ऊपर तो बहुत बुरी तरह दे दिया। नहीं ये सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ट्रक के नीचे नहीं दिया, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को भी दे दिया, 2 बंदों को दिया, सबको दे दिया साहिल भाई। इसने जैसे अगले दिन बाजारू औरत का लकब दिया ना बशीरुद्दीन महमूद को, ये पागल हो गया मुरब्बी। लेकिन मैं इसी के साथ ही मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, तब तक मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल। मैं सो गया था, माजरत है, बीच में जब आपने वाटर को पकड़ा हुआ था और आप कह रहे थे आप मानते हैं ये, आप ऑफिशियली कह दें। तो वो कहता था अच्छा अब कह तो मैं वही बात रहा हूं लेकिन अब ऑफिशियली कह रहा तो मैं अब डर जाऊं, थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं। साहिल भाई मुझे ये बताए, और बाकी भाई जरा इस पे गौर करे, आज यकीन करे मेरा ना ज़हन इस बारे में, मैं सोचता रहा हूं। मैं कहता हूं इंसान कोई भी काम करता है ना उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक एंड गोल होता है। बंदा कहता है ना यार मेरे जो मीन्स हैं वो एंड जो है मेरे जस्टिफाई हो जाएंगे अगर मेरे मीन्स देख लोगे। अच्छा जी, कभी को लोग कहते हैं ना मेरे मीन्स जस्टिफाई एंड को कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अहमदी जमात का बंदा जब आपके सामने जोर लगा रहा था कि साहिल भाई नहीं देखे ना वो तो बाइबल में लिखा है वो पीते थे, आखिरी जो सफर था, आखिरी जो दावत थी उसमें भी उन्होंने शराब पी, फलाने ने शराब पी, कब बैन हुई? तमाम अहमदी ये काम करते हैं। उससे पहले आपकी ब्रॉड पर बैठा था अब्बास नामी बंदा, याद है आपको? जी जी जी। अब्बास नामी बंदा भी यही खच मार रहा था, यही वाली खच। एंड गोल क्या है? ये क्यों इतना जोर लगाकर अल्लाह के सच्चे पैगंबर को शराबी माज़अल्लाह साबित क्यों करना चाहते हैं? और आप क्यों जोर लगाकर इस बात पे उससे लड़ रहे हैं कि नहीं यार अल्लाह के नबी शराब नहीं पीते थे, हजरत ईसा नहीं पी सकते?
वजह क्या है? ये आप में दोनों में ये तनाजा क्यों है? कादियानी अचीव क्या करना चाहता है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं? जरा इसके बारे में जरा रोशनी डालें। अचीव ये करना चाहते हैं कि हमारे नजदीक जो नबी है, जो नबूवत है, वो इतना मतलब आला पाए का दर्जा और मकाम होता है कि वहां तक आप किसी भी गलत चीज को लेके नहीं जा सकते। इसी वजह से अल्लाह ताला उनको इनका इंतखाब करता है और ये कहते हैं कि नबूवत का दर्जा इतना कम कर दिया जाए कि हर ऐरा गैरा शख्स, शराबी, फ्यूनी, जानी, कोई भी किसी किस्म का भी जो है ना वो हो तो वो बन सकता है। ये करना चाहते हैं वो। मतलब आप कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद को चूंकि वो मान चुके हुए हैं जी, और उसकी एक दलील थी, आपने वो पॉइंट साहिल भाई वो नोट करने वाला था जिस पे उसने कहा कि मैंने ये मुझे नहीं लेना देना कि वो पीते थे कि नहीं थे पीते, जी, जी, मुझे सिर्फ ये है कि मैंने उनको नबी मानना है। बात समझे आप उसकी? जी, ये बात यकीन करें कादियानियत आज इसी चीज पे चल रही है, चूंकि वो मिर्जा को मान चुके हुए हैं। अब दे डोंट गिव अ डैम, आप जो मर्जी इनके सामने कुफर रख दे, क्योंकि मान बैठे हो। वो फंस गई है, वो जान शिकंजे अंदर आ गई है, खिड़की में आ गई हुई जान। वो फंस चुके हैं भाई इस चीज के अंदर, वो नहीं टच से मस हो सकते। ये अहमद जट भाई आए हैं, ये भाई से तारुफ ले लेते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं सर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। भाईजान किसी बात से इख्तलाफ? इख्तलाफ मैंने क्या करना है? आप तो कहते हो कि नबी नहीं आ सकता, वो आपका नबी आ गया है। वो मकीन अली की ब्रांड पे ना वो दिखा रहा है नया नबी। आपने अच्छा, तो रेट लगाई हुई है कि नबी आ नहीं सकता, तो जाके उस पे ईमान ले आओ। मिर्जा मसरूर नु फैक्स लिखो। साकी भाई ठहर जाओ, साकी भाई ठहर जाओ। भाई मेरे जी पास अहमद भाई बात और कर ले, पूरी कर ले, बात मुकम्मल जी कर। जी हाँ जी, वो कह रहा है कि भाईजान इमरान खान जो है ना वो नबी है, हाँ नबी भी है और रसूल भी है। ठीक हो गया। वो उधर अपना दुरूद सलाम भी भेज रहा, लिखा हुआ उसने, मैं को झूठ तो नहीं बोल रहा। कोई मसला नहीं, आप मुकम्मल करें बात, कोई बात नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, आप करें बात, कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि वो देखो को कह रहा है कि इमरान खान नबी है, तो उस पे जाके ईमान ले। छोड़ो इधर सही है। सारा दिन बैठ के मिर्जा साहब की बातें करते रहते हो। ठीक है। अच्छा अहमद जट भाई, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। अहमद भाई फिर आपके मुताबिक तो नबी आ सकते हैं ना? भाई जी जिसके मतलब बिशारत दी थी हमने तो मान लिया है। नहीं वो ठीक है, वो तो हाँ जी, वो कह रहे भाई जी ने तस्वीर लगाई ऊपर लिखा। मैं आता हूँ उस पे अहमद भाई, अब आपने इतनी लंबी बात की, मुझे भी जरा मौका दें, मैं आता हूँ उस पे। आपके मुताबिक नबूवत जारी है ना जी? भाई जी मेरे मुताबिक क्या सूरत अरावत अदर 35 नंबर सूरत उसमें पढ़ ले, वो तो हाँ ठीक है, जब तुम्हें नबी आए, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब जो नबी का दावा कर रहा है, आप इमरान खान को क्यों नहीं मान रहे नबी? जो उसने फोटो लगाई, नबी तो आ सकते हैं, तो फिर माने, क्यों नहीं मान रहे? कोई वजह है जो आप रुक रहे हैं नबी ना मानने की? भाई जी मैं तो यही कह रहा, वो आपका सरकारी मुसलमान भाई है, वो कह रहे हैं इमरान खान नबी है। ठीक है, लेकिन फिर आपके मुताबिक तो नबूवत जारी है, मान क्यों नहीं रहे? वो कह रहा है कि उसको गैब की खबरें आती है। आप देखो भी, आप किसी पे भी मान दो। अहमद जट भाई बात तो सुने, मौका दें, और मेरा सुने, मैं सवाल करके रहा हूं। हमारे नजदीक तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो जो भी फोटो लगा के बैठा है। लेकिन आपके नजदीक तो नबूवत जारी है, तो आप परखेंगे नहीं जाके इमरान खान नबी है कि नहीं, या हम रिजेक्ट कर देंगे? जी अहमद भाई। देखिए मेरा जिसने आना था मैंने तो परखा हुआ है। अहमद भाई ना अहमद भाई नबूवत जारी है ना? सूरह राफ की 35 नंबर आयत हाँ, जारी है ना? इमरान खान का खुद को दावा ही कोई नहीं है ना। इमरान खान अच्छा ओहो, बात तो सुन ले, एक मिनट रुक तो जाए। आपने तो मान लिया ना जिसने आना था। अब इमरान खान को वो बंदा पेश कर रहा है आपके सामने, दावा ही कर रहा है ना, दावा ही कर रहा है। मिर्जा साहब का दावा दिखा दें, कहाँ किया नबी का दावा? आधी जमात तो मानती नहीं उनका नबूवत का दावा। आप दिखाए कहाँ उनका दावा लिखा, दिखाए मुझे। मिर्जा साहब ने कहा कि मैं नबी हूं, मुझे मानो। भाई चलो मैं कहता उनका दावा नहीं है, तो ये जो असम्बली में काफिर करार दिया है, फिर ये जाहिल लोग बैठे हुए थे उधर। ठीक है, इसी तरीके से जब इमरान खान ने भी दावा नहीं किया, ये जाहिल लोग थे। मौका तो दे, मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान नबी नहीं हो सकता?
भाई जी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अपने भाई मुसलमान भाई को देखो, वो सरकारी जो ओहो, इंसान है वो जिसने उसको बात समझाएं। सुने, आप उसकी वो जो अगर आप मुसलमान उसकी भाई, आप जाके रहनुमाई करें मौका कि तो दे, भाईजान ये अहमद भाई आप मौका गलत तो दे। कर रहे हैं, ये अहमद प्रोपेगेंडा भाई है। कितने प्यारे भाई हैं आप आप, मौका तो दे। अहमद भाई कितने प्यारे भाई हैं, मौका तो दे। अहमद भाई वो जिसको आप कह रहे हैं ना मेरा मुसलमान भाई, अहमद भाई मैं लानत ना डालूं ऐसे बंदे पे जो इमरान खान को नबी मान के बैठ गया है। मेरी तरफ से काफिर है वो जन्मी है। जो इमरान खान को नबी का दावा कर दे, इमरान खान नबी है, मेरी तरफ से वो जहन्नम के आखिरी दर्जे में बैठा होगा। वो तो काफिरूना हक है। ओ भाई जी वो मेरा जहन्नम में मुसलमान जाए, भाई कहां से आ गया? ओ भाई जी वो जहन्नम में जाए जन्नत में जाए, इसका आप फैसला नहीं कर सकते। मैंने हाँ, इसलिए ये बात बताया ठीक है, है, मैंने तो बिल्कुल इसलिए ठीक है। बताया कि देखो उधर आपके भाई बता रहा है, देखो नहीं, बहुत अच्छा किया जाके आपने बताया है, और बैत कर यकीन लें। करें, हाँ आजकल टिकटॉक में ना नहीं बंदा कई दफा ध्यान दे पाता। आपने बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह चीज बता दी। तो आपको अहमद भाई जरा मुझे एक सिर्फ ना मेरा सवाल समझिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है उस इमरान खान को नबी मानने से? खाली ये बता दें, क्योंकि नबूवत तो जारी है। सूरह राफ की 35 नंबर आयत आपने पढ़ दी। भाई अहमद देखो, इनकी बातों में आप नहीं जाना, मुझसे ये आप आपको ना मुझसे गुमराह पूछ करने रहे की हैं, कोशिश करेंगे, जो बात आप खिलाफत तो मुझसे जारी पूछ रहेगी रहे अब हैं ये तो क़यामत आपने तक। पहले ही बता दिया। क्या जी क्या जी क्या है आपने अहमद भाई? अहमद ये भाई चलो मुझे ये बाका भाई बताएं। बता रहा था। नहीं नहीं, वो भाई वो ऐसी वो जाहिल मुखालिफ हैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की बैत से क्या चीज रोक रही है आपको? आप क्यों नबी नहीं मान रहे? आपने परख लिया उसको कि वो नबूवत पे नहीं उतरता पूरा? भाई जी मैंने तो परखा ही नहीं, अभी तो उन्होंने ब्रॉड में मैं ऐसे चल रहा था, देखा तो वो बैठा, मैं भी ऊपर तो चला अगर गया, तो अहमद मैंने जट मना भाई, किया। अगर वो वाकई नबूवत जारी हुई तो फिर आप क्यों नहीं परख रहे उसको? नबूवत तो जारी है ना जी। भाई जी वो तो इमरान खान के नाम का कलमा ही बता रहा है। ओहो, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताए कि अगर वो जो बंदा बैठा है अगर कहे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इसमें इमरान खान भी शामिल है अब क्योंकि वो नबी है, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे आप? ये तो आपका काम है ना उसको समझाना जाके, यार मैं भाई तो जी आप कहूंगा गलत बात लानती कर है, रहे हो। कज़्ज़ाब है और काफिर है जो कलमे में इमरान खान को शामिल कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई कलमे में शामिल हो सकता है अहमद जट भाई? नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। तो अहमद जाट भाई अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद को कलमे में शामिल कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में, कि वो भी शामिल है उसमें। ओ भाई जी कलमे में कैसे शामिल कर लें? हाँ, नहीं अगर कोई अहमदी कहे जी नहीं मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है, उस अहमदी को क्या कहेंगे आप? चलो भाई मैंने जी तो कह दिया काफिर है जो मैं करेगा ज्यादा मुसलमान बहस जिस। में आपसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा नहीं नहीं, काम था आप आपको बड़े इत्तला प्यारे दे भाई देना हैं, मैंने बहस कि करनी नहीं आपसे। हाँ जी अहमद भाई बड़े प्यारे भाई, आपने मुझे इतनी प्यारी खबर दी है, सुनिएगा जरा। आपने कहा आपका मुसलमान भाई कलमे में शामिल कर रहा है, मैंने क्या कहा? काफिर है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। अब अगर आपका अहमदी भाई कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद को शामिल करे, उस अहमदी भाई को क्या कहेंगे? मेरी तरह ही कहेंगे जैसे मैंने कहा उसके बारे में? भाई जी जो बात हम कहते नहीं क्यों करनी है? तो मैं कहता हूं छोड़ दे इस चीज को। आप नहीं ना करते कलमे में शामिल? हाँ मैं ये देख रहा था, ये घोड़े वाली सरकार है, ये भी बहुत बदतमीजी से बातें कोई कर रहा बात था, नहीं, मैंने तो छोड़े बता इनको, दिया। ये शरारती लड़के हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप देखें मैंने तो नहीं ना की बदतमीजी कोई अहमद भाई अभी तक आपसे। नहीं आपने, मैं ये कह रहा था कि देखो कि ये बहुत बदतमीजी मैंने देखा है कि अदर अमीर साहब को बोल रहा था, उस पर एतराज लगा रहा था। आपके मैंने मौलवी देखे हैं, हाँ मतलब आपके मौलवी देखे आए दिन मौलवियों की नई से नई खबरें आती हैं। मेरी बात सुन लें। हाँ एक जी। ब्राड पे बात हो रही थी स्टूडेंट भाई के साथ, उधर अफजल वड़ैची बैठा हुआ था, और ये 4-5 दिन की बात है, तो यही बातें हो रही अच्छा। थी। वो कहता है मिर्जा साहब अगर मुजद्दद ही रहते हैं, दावा करते ना खाली मुजद्दद का, तो फिर वो सच्चे थे, फिर वो ठीक थे। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक है। स्टूडेंट ने बोला कि जो अगर वो सच्चे थे मुजद्दद था, तो फिर जो ये सारा दिन आप इतराज़ करते रहते हैं, उस पर इतने इतराज़ करते हैं, तो फिर ये क्यों करते हैं? कहते जब उन्होंने नबूवत दावा किया तो फिर हमने की। देख नहीं और ये तो खाली बात वो फिर आप क्या नहीं देखे, पता है बात क्या है? वो सही बात आपने की, अपने मौलवी देखते नहीं और आप पे इतराज करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं अहमद जट भाई, मैंने तो अब तक कोई आपसे गलत बात नहीं की ना, आप तो बड़े अच्छे भाई हैं। अहमद जट भाई मुझे सिर्फ ये बताए कि अगर कोई अहमदी मौका दीजिएगा,
अगर कोई अहमदी कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और इसमें मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है, तो उस अहमदी को क्या कहेंगे आप? ओ भाई जी अहमदी कहते ही कोई नहीं इस तरह की ओहो, बात मैं नहीं कहता हूं करता। अगर कह दे, अगर अहमदी का दिमाग खराब हो जाए, जैसे आपने मुसलमान का बताया ना, मैं कहा फारिग हो गया, पागल हो गया, आप क्या कहेंगे उस अहमदी को कि भाई इसका दिमाग ठीक है कि नहीं? तो ये जो सियालवी साहब ने ये बात की थी, क्या ये ठीक की थी बात फिर इसने? नहीं, अगर वो सियालवी साहब, मुजद्दिद का अहमद दावा जट थी, भाई, वो ठीक थे, सच्चे थे। जब अहमद जट नबूवत भाई, का दावा कर दिया उसके बाद फिर उसमें अब नकार अहमद जट भाई, अभी मैंने सियालवी साहब को सुना नहीं, सियालवी साहब मौजूद नहीं है, तो ये गीबत हो जाती है ना, ठीक है? इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि आप और मैं देखें गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा बीच में। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई अहमदी ऐसा कहे तो आप उसको कहेंगे कि मतलब ये पागल हो चुका हुआ है? भाई जी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो उसकी बरात में जाके करें उससे बात। किससे? वो जिसने उस पे लिख के लगाया, इमरान खान की फोटो भी लगाई हुई है। चले छोड़े इस बात को, छोड़े इस बात को। वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कलमे में कोई शामिल हो सकता है इस्लाम के मुताबिक? जी अहमद जट भाई, अहमद जट भाई चले गए। अहमद भाई आते रहा करें, ऐसी खबरें प्लीज हमें दिया करें कि किस मुसलमान ने नबूवत का दावा इमरान खान का करा दिया, लाजमी हमें ना अपडेट किया करें। हम लोग न्यूज वगैरह बहुत कम देखते हैं, तो प्लीज बिल्कुल लाइएगा लाजमी। अगर आप आना चाहे तो आज आ सकते हैं, मतलब एनी टाइम। आपके भाई की ब्रॉड है ये। जी तो कहाँ थे हम भाइयों? सॉरी, जरा बीच में थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक आ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाले से जो बात थी कि वो शराब का जो बात किया, हाँ वहां पे आ गए यार। साहिल भाई वैसे जो अहमदी असूल पेश करता है उस पे क्या हो जाता है, एक सेकंड के अंदर बाल्टी टेढ़ी हो जाती है, क्या चक्कर है? पता नहीं, पढ़ते नहीं है ना। हाँ ये भी चक्कर है। चले कोई नहीं, अभी ये वो बात आ करते, जाएगी अगर भाई। इन्होंने कलमातुल फसल पढ़ी होती अपनी वेबसाइट पे जाके तो ये बात करते। उन्हें वो बैठे हैं वो आप आ सकते हैं। अच्छा ठीक, ले जी साहिल भाई, मैं वो बात चल रही थी, ठीक है जी। अगर साहिल भाई कोई शख्स ये कह दे, जरा गौर से सुनिएगा, जी, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी भी रास्ते में ही फौत हो गए और वो अर्ज़े मुकद्दस की कामयाबी ना देख सके, और इनके बाद इनका खलीफा और जानशी इसका फाते हुआ। क्या मकसद, ये क्या कहना चाहता है ये इंसान? तो मूसा कामयाब नहीं हुए और क्या करेंगे? हा। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि जी हमारी तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को उतार कर क्या करेंगे। आखिर उनके गवाह तो वही होंगे जो पहले थे। पहले क्या किया था जो अब करेंगे? एक जलील सी मदोदे चंद एक कौम थी, उनकी भी सलाह ना हुई। लिखा है कि एक दफा उनमें से 500 आदमी मुर्तद हो गए थे। ये लोग अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की उम्मीद रखते हैं तो कुछ मौजू भी था, क्योंकि वो साबे अजमत व जबरत थे, उनमें शुजात भी थी। अब ये ईसा के पीछे पड़े हुए हैं। फिर मुश्किल ये है कि आदत का जाना महाल है, उनको मार खाने और बुज़दिली की आदत हो गई थी। ओए वो होए अगर होए 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 होए। दज्जाल से जंग करेंगे तो किस तरह? ये लिखने यार वाले ने साहिल लिखा हुआ भाई, है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये आज खास तौर के ऊपर सिर्फ एक गवाही के तौर पे मैं उनको गवाह बनाना चाहता हूं, उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करना चाहता। जी, पाकिस्तानी साहब जरा आ जाए, और आप यू आर अ रीजनेबल मैन, आई नो दैट। आप सिर्फ मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, जरा तशरीफ लाइएगा। कोई हम आपसे तुंदो तेज सवालात नहीं होंगे, आपकी गवाही जो है ना मुझे चाहिए, ताकि आप कहीं पर बैठे तो ये कह सके कि हाँ आई वॉज देयर।
जी बिल्कुल, जब तक वो आते हैं एक आखिरी स्टेटमेंट पढ़ूंगा फिर शुरू कीजिएगा। एक शख्स ने, लिखने वाले ने ये लिखा है, अब ये याद रखिए कि यहाँ भी यसू नहीं हो रही, यसू की बात नहीं हो रही। कश्मीर में कब्र किसकी, आपको भी पता है किसकी बताते हैं। कहता है कि जो शख्स कश्मीर श्रीनगर मोहल्ला यार खान में मदफून है उसको नाहक आसमान पर बिठाया गया है। किस कदर जुल्म है। खुदा तो पाबंदी अपने वादों के हर एक चीज पर कादर है, लेकिन ऐसे शख्स को किसी तरह दोबारा दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फितने ने ही दुनिया तबाह कर दी हो। अल्लाह अकबर। साहिल भाई जरा यार ये ब्रॉड ना, वो जो है ना सत्ता दी जोड़ी, वो जो फिलोसफरों की जोड़ी है, चाइना के फिलोसफर जिनको मिर्जा साहब को ट्रक के नीचे देने का बड़ा शौक है, को शेयर कर दी जावे क्योंकि मुरब्बी फेर गया आज। मुझे टाइम नहीं था मिल सका और मैं कल का दिन बिजी था। मुरब्बी फेर गया आज। और थोड़ी सी ऑडियो ना थोड़ी मुख्तसर करके ना ये वाले भाई जरा सारे भाई ना इसको रिकॉर्ड करें। जाहिद भाई आप भी रिकॉर्ड करें। इनके मुंह पे ना थप्पड़ पड़ेगा आज वो जो देखने के लायक है। जहां से ये कहता है ना क्या ये गुस्ताखी नहीं, सीकर मान गया है, इसको साइड पे करके ना सिर्फ वो शॉर्ट पार्ट निकाले जहां पे इसने बात की है कि उनकी किताब में लिखा गया है कि जनाब वो नाकाम गए। ये वाला तो पार्ट निकाले। क्या ये गुस्ताखी नहीं? हाँ, क्या ये गुस्ताखी नहीं? जरा ये निकाले जरा। वो निकल आएगा। अगर ये बात है तो ये सुनिए क्या लिखा है। किसी लिखने वाले ने लिखता है कि वो सिर्फ एक खास कौम। साहिल भाई अभी नहीं, पहले ऑडियो हो जाए। अभी ऑडियो हो जाए, मुरब्बी का असूल सामने रख ले तो उसके बाद जो है जी दोबारा प्ले करनी है। थोड़ा उसको बस ट्रिम करके ना वो पार्ट आपने बार बार प्ले करना है, नाकामी वाला। कि क्या ये गुस्ताखी नहीं? फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, जाके रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करके आता हूँ। फिर नहीं, अभी तो चलाई है आपने। मैंने दूसरी डिवाइस से चलाई है ना बार बार। फिर वो ही पार्ट जो है वो अगर क्लिप मेरे पास अलग से पड़ा हुआ है आप मुझे भेज दे जरा। तो भाईजान चले मैं नहीं फिर आप ही चलाए। मैं नहीं चलाऊंगा। बल्कि ओके मुझे 2 मिनट देना, मैं चला देता हूँ। आ जाए कोई मसला नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सिकर भाई सुनिएगा वो खैर उन्होंने चित्र पढ़ते रहते ने। सुनिए, कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि सिर्फ वो एक खास कौम के लिए आया और अफसोस उसकी जात से दुनिया को कोई भी रूहानी फायदा ना पहुंच सका, और एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया कि जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ और उसके आने से इब्तला और फितना बढ़ गया। नबूवत? जी खुदाई नहीं, नबूवत के अल्फाज लिखे हुए हैं भाई। नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया, नबूवत का जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ। अल्लाह अकबर। यार साहिल भाई ये बहुत बदबख्त नहीं है यार? ये अब कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कहता हूं मतलब एक बंदे ने मतलब क्या सोच के यार ये बंदा काम करता रहा होगा। इसको भूल गई होगी मौत, सारा कुछ ही भूल गया होगा। अच्छा इसने देखो खुद तो चलो गया, आने वाली नस्लों के बारे में इसने क्या काम कर दिया। आने वाली नस्लों को सबक मिर्जा मसरूर ने पढ़ाया नहीं। वो मुझे तो सही से अभी याद नहीं आ रही वो रिकॉर्डिंग जिसके अंदर वो एक बच्चा सवाल करता है तो कहता है वो शराब पी होगी उन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मैं प्ले कर दूं अभी या बाद में कर लीजिए? करें जी प्ले जरा। एक मिनट ठहर जाए। सारे भाई इसको रिकॉर्ड कर ले और जमाते अहमदिया का ये जाहिल मुरब्बी और एक गुस्ताख इंसान जिसने धमकी दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की, इस बंदे ने एक असूल दिया है और असूल दिया है कि ये गुस्ताखी होती है। और वो असूल क्या है जरा सुने जी, क्या गुस्ताखी होते हैं। अल्लाह के फजल से दोस्तों सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं। हाँ
ये फेल का उर्दू क्या होती है भाई? उन्होंने इंग्लिश में तो नहीं लिखा होगा। काम मिशन कह लें कोई। नाकाम। नाकाम मतलब फेल हो गया ना, नाकामी। अच्छा फेल, वो इम्तिहान। फेल, अच्छा हाँ। वो नाकाम। मैंने कहा हाँ, फेल फेल दूसरा उर्दू काम वाला। करता है। नहीं 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 फेल नहीं, माजी अच्छा फेल मुस्तकबिल में उसकी बात सुन। कोई मसला ही नहीं, ठीक है जी। अब दोस्तों इसने कहा है, मुरब्बी का असूल है कि क्या ये गुस्ताखी नहीं कि कह दिया जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए थे, फेल हो गए थे अपने मिशन। यही कह रहे हैं, मैंने गलत तो नहीं समझी भाई? बिल्कुल। मैंने कहा जी अल्लाह के फजल से आज सीकर मान गया कि वो और उसके बड़े गुस्ताख हैं। हाँ जी, चलो वो तो एक साइड इशू ना, वो बेचारे ने तो कुछ ना कुछ तो बजाना ही था। नहीं, लेकिन जो उसने असूल दिया है, उसने कहा है उस इसी हाँ कि गुस्ताख है ना। हाँ, अब जो भी ये बात कहेगा और जो ये मानेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए, तो वो गुस्ताख है जी मुरब्बी के फतवे पे।